Hello everyone. Today we are going to complete a most important utilization important MCQ questions for all electrical JEE exams like MP sub engineer as well as MP ITI training officer. So let's begin with first question. Which of the following types of electric heating is not considered as a high frequency heating? So if you see infrared heating, it is also a frequency heating. Induction heating is a frequency heating. Dielectric heating is a capacitive frequency heating. Dielectric heating is also called as capacitive. ठीक है. Arc heating. So the right answer for this is arc heating because arc heating does not have any frequency content in it. Okay. Next is in next question they are asking Eureka. ठीक है. Eureka is a commercial name of heating. द कंपोजिशन ऑफ यूरेका इज, है ना. तो यूरेका का कंपोजिशन पूछ रहे हैं. तो यूरेका जो है ना, यूरेका को अपन और क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंटन. ठीक है. कॉन्स्टेंटन, इसी को हम क्या बोलते हैं? यूरेका. तो जो यूरेका होता है वो आपका कॉपर और निकल का एलॉय होता है. ठीक है. कॉपर और निकल की मिश्र धातु होती है, जिसमें यदि हम देखें तो कॉपर का परसेंटेज कितना होता है? कॉपर होता है 55% और निकल होता है 45%. ठीक है. इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ क्या होती है यूरेका की? यदि हम मेन प्रॉपर्टी देखें तो इसकी होती है लो थर्मल वेरिएशन ऑफ इट्स रजिस्टिविटी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ इसकी रजिस्टिविटी पे फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है. इसलिए इसको हम कहाँ यूज करते हैं? इसको हम मेजरमेंट के कुछ मीटर्स में भी यूज करते हैं कॉन्स्टेंटन को. ठीक है. कॉन्स्टेंटन इज़ अ निकल कॉपर बेस्ड अलॉय वायर दैट हैज़ अ हाई रजिस्टिविटी, मेनली यूज्ड इन थर्मोकपल मीटर्स में यूज़ करते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीटिंग में, थर्मोकपल मीटर्स में. ठीक है. ओके. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी यूज्ड फॉर डाइलेक्ट्रिक. सो द डाइलेक्ट्रिक के लिए जो फ्रिक्वेंसी यूज होती है उसकी रेंज क्या होती है? इट इज़ 10 मेगा हर्ट्ज टू 30 मेगा हर्ट्ज. ठीक है. 10 मेगा हर्ट्ज टू 30 मेगा हर्ट्ज. ठीक है. इट इज़ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी. सो डाइलेक्ट्रिक फ्रिक्वेंसी इज अ हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग. ओके. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कैपेसिटिव हीटिंग. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not a welding welding accessory? Okay. So right answer for this one is, if you see, इलेक्ट्रोड, जो वेल्डिंग करने वाला होता है उसके हाथ में इलेक्ट्रोड होल्डर होता है तभी वो वेल्डिंग कर पाएगा. हैंड स्क्रीन होती है उसके प्रोटेक्शन के लिए. ग्लव्स भी होते हैं प्रोटेक्शन के लिए. ठीक है. इलेक्ट्रिक होल्डर भी प्रोटेक्शन के लिए होता है ताकि फायर उसके हाथ के संपर्क में ना आए. तो ऐसी सामग्री जो उसको प्रोटेक्शन दे रही है वो तो सामग्री कहलाएगी, एसेसरी में की कैटेगरी में आएगी. लेकिन केबल क्या होता है? वो करेंट को फ्लो कराता है. ठीक है. सो द राइट आंसर फॉर दिस वन इज केबल. The tips of electrodes for the spot welding are made of, okay, so the tips of electrode for the spot welding are made up of, they are made up of copper alloy और प्योर कॉपर. ठीक है. कि इलेक्ट्रोड के टिप्स किसके बनाए जाते हैं? कॉपर एलॉयज और प्योर कॉपर के. ठीक है. स्पॉट वेल्डिंग में, स्पॉट वेल्डिंग होती क्या है? स्पॉट वेल्डिंग means joining of two metal sheets and fusing them together between electrode tips at suitably spaced intervals by means of heavy electric current pass through the electrodes. ठीक है. The electrodes are made up of copper or copper alloy and are water cooled. Okay. Next question is, in SI system the base unit for the measurement of luminous intensity is, what is a base system?
Base unit for luminous intensity is candela. Okay, so the right answer for this one is candela. In which of the following lightning schemes 90% to 100% of total light flux thrown upward to the ceiling or diffused reflection? See, there are two types. There are more types, but mainly there are two types. You know, when the bulb is here glowing, okay, and the reflector is here, and the whole light is towards the ceiling. Suppose this is a rooftop. This is a rooftop, okay. Suppose this is a rooftop, okay. So when the whole light gone upwards, okay, then it is a indirect lightning. And when the whole light is going downwards and the reflector is here, okay, then it is called a direct lightning. ठीक है. सो जब प्रकाश सीलिंग की तरफ जाएगा तो इनडायरेक्ट, और पूरा प्रकाश 90 से 100% नीचे की तरफ आएगा तो डायरेक्ट लाइटनिंग. सो द राइट आंसर फॉर दिस वन इज इनडायरेक्ट लाइटनिंग. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अ लैम्प टेक्स 5 एम्पियर एट 250 and 250 volts at 250 volts. A lamp takes 5 ampere at 250 volt and emits 8000 lumens at MSCP. Lumens, it's MSCP. तो MSCP क्या होता है? MSCP होता है आपका टोटल लूमन, जस्ट अ मिनट, टोटल लूमन डिवाइड बाय 4 पाई. ठीक है. तो टोटल लूमन कितना दिया है आपको? टोटल लूमन यानी टोटल लाइट कितनी एमिट हो रही है? 8000. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? 8000 डिवाइड बाय 4 पाई. ठीक है. व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल फाइंड इट एज टू बी 2000 divided by pi. So the right answer for this one is 2000 divided by pi. Okay. Next we have is the candle power of lamp placed at normal to a working plane is 60 cp. Find the distance. Find the distance luminous if the luminous if the illumination is 15. ठीक है. So the right answer for this one is 2 meters. And here is the solution. Illumination E is equal to Cp divided by D square. Cp divided by D square. ठीक है. इल्यूमिनेशन आपको दिया है, आपसे पूछा क्या है? फाइंड द डिस्टेंस. डिस्टेंस पूछी है. ठीक है. तो ये तो फॉर्मूला ये हो गया, E इज इक्वल टू Cp डिवाइड बाय D स्क्वायर. इल्यूमिनेशन आपको कितना दिया है? क्वेश्चन में इल्यूमिनेशन दिया है 15, Cp दी है 60 और D स्क्वायर हमको निकालना है. तो 15 एकम 15, 15 चौके 60, तो D बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 2. ठीक है. सो द राइट आंसर फॉर दिस वन इज 2 मीटर्स. ठीक है. 2 मीटर्स. Okay, next question is the graph shown represents the speed time curve of an electric train. What does region AB on the curve represents? AB. Okay. So if you see there are 5 regions mainly there is. ठीक है. If you see O to A,
O2A is called rheostatic acceleration. O2A is called rheostatic acceleration. ठीक है, rheostatic acceleration. In this, what happens is the starting resistance of the motor is gradually cut out so that the motor current is maintained constant, which produces constant acceleration. ठीक है, it is also called a rheostatic acceleration. ठीक है, and it is also called a acceleration while notching. तो first one is acceleration while. These terms are very important for this curve, okay, in utilization. Now see, the next one is A to B. A to B is the in which speed curve running, the voltage acting across the motor remains a constant and current starts decreasing with the increase in speed according to the characteristic of the motor, and finally the current taken by the motor becomes constant. During this period, the train accelerates, but acceleration decreases with the increase in speed. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रेन तो एक्सेलरेट करती है, लेकिन एक्सेलरेशन कम हो जाता है स्पीड बढ़ने के साथ. ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, कम होता जाता है और स्पीड बढ़ती जाती है इस वाले में. ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन और स्पीड कर्व. ए टू बी इज अ स्पीड कर्व. ओके, द नेक्स्ट वन इज बी टू सी. बी टू सी इज अ फ्री रन और कांस्टेंट स्पीड रन. ठीक है, फ्री रन. इन दिस, टाइम के साथ जो है ट्रेन फ्रीली मूव करती है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज सी टू डी. सी टू डी में क्या होता है, द फ्री रनिंग पीरियड पावर सप्लाई इज कट आउट एंड द ट्रेन इज अलाउड टू रन अंडर इट्स ऑन मोमेंटम. ट्रेन अपने ऑन मोमेंटम में चलती है. ठीक है, सी और डी को अपन क्या बोलते हैं, कोस्टिंग. कोस्टिंग पीरियड मतलब कोस्टिंग पीरियड में ट्रेन अपने ऑन मोमेंटम में चलती है. ठीक है, अपने ही मोमेंटम में चलती है. द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज डी टू ई. डी टू ई इज अ ब्रेकिंग पीरियड. ठीक है, दिस इज ब्रेकिंग. नाउ व्हाट इट इज आस्किंग, व्हाट डज कर्व ए बी ऑन द कर्व रिप्रेजेंट्स. तो ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है, ए टू बी स्पीड कर्व. ठीक है, सो द राइट आंसर फॉर दिस वन इज स्पीड कर्व और एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन, स्पीड और एक्सेलरेशन कर्व. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3. luminous efficiency of fluorescent tube is how much? So it is going to be 60. Okay, next question is sodium vapor lamp is used in. सोडियम वेपर लैंप का हम यूज कहाँ करते हैं, स्ट्रीट लाइट्स में करते हैं. नेक्स्ट वन इज which of the following battery is not rechargeable? Just a minute. Which of the following battery is not rechargeable? ठीक है, सो निकल मेटल हाइड्रेट बैटरी इज रिचार्जेबल. लेड एसिड बैटरी भी रिचार्ज. लिथियम आयन बैटरी मोबाइल में होती है, वो भी रिचार्जेबल है, लेकिन सिल्वर ऑक्साइड बैटरी इज नॉट रिचार्जेबल. सो राइट आंसर फॉर दिस वन इज सिल्वर ऑक्साइड बैटरी. ओके, नेक्स्ट इफ यू सी, वाई इज इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग प्रेफर्ड. ठीक है, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग अपन क्यों प्रेफर करते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग में क्या होता है, स्मूथ है, मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस है. ठीक है, एनर्जी सेविंग है, ऑल ऑफ द ऑप्शन है. ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. द crest speed in electric train is. क्रेस्ट स्पीड क्या होती है इलेक्ट्रिक ट्रेन में, द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय अ ट्रेन ड्यूरिंग द रन. ठीक है, तो क्रेस्ट स्पीड क्या होती है, इट इज़ अ मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय अ ट्रेन ड्यूरिंग द रन, दैट इज कॉल्ड अ क्रेस्ट स्पीड. ओके, सो आज के लिए इस PDF में इतने ही क्वेश्चन है. ठीक है,
14 questions we have solved till now. So these are very very important. आप 2 से 3 बार इसको देखें, है ना, आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से आएगा ही आएगा.